Let's we start with our chapter number 5. In this chapter number 5, up to here we have studied how the various characters characters pass from one generation to other generation, and as well as how one character is the sex, means either that particular become male or female. So that sex determination is also a one kind of hereditary problem. So here we move further, and now we try to find out the mutation. What is the meaning of the mutation and how it occur? That we study from our this topic number 5.7, page number 88. So look, page number 88, topic number 5.7. 5.7. Topic number 5 means chapter number 5, topic number 7. Mutation is a phenomenon which results in alteration of the DNA sequences and consequently result in change in the genotype and the phenotype of an organism. What is the meaning of this? This that up to here we have studied that every character which is present in our, means in any individual, that is due to the particular kind of genes, and genes are always present in the chromosome. Inside the chromosome, what is the present? That is known as the DNA. And as you have studied in the standard 11, that what happen in this DNA, we will study very detail in the chapter number 6. But what you have studied in this DNA, you know there is a sequence of the nitrogen base. As for example, sequence of the nitrogen base is present like this. Let the chromosome number 1. In chromosome number 1, some nitrogen base sequence is A, T, C, G, T, A. And let we see that this nitrogen base sequence, which is known as the gene, any nitrogen base sequence which is responsible for any character, that is known as the gene. Let we have here, this is the American person, American citizen, particular American, and its skin is very white. And what is the responsible gene? A, T, C, G, T, A. One is the African person. In this African person also, on the chromosome number 1, on the chromosome number 1, he has also the skin color gene. Look, I don't know, yeah, either it is a present in the chromosome number 1 or the 5. This is only to understand this African person has the gene for the skin color A, T, C, T, T, A. Look, American is A, T, C, G, T, A. While this African person is A, T, C, T, T, A. Can you make out? The sequence of the nitrogen base is different in both the person. Due to this reason, this American person is white, this African person is black. This is called gene. Now what happened? From the gametes formation, these genes from by the chromosome, it pass one generation to other, generation to generation, generation to generation. So this American person's progeny will be white. Once again, this chromosome gene DNA will be transferred by the form of the gametes, so its progeny will also be a white. White, 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 continuous. Here, black, black, black will be continuous. But what happened at the one stage in this black person A, T, C, T, 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 A, instead of this turns to A, T, C, T, C, A. So definitely that is not GTA. This turns to
TCA. So what will be happen? May possible that this black color person may develop some other color patches on his skin. And what will be happen? This will move from one generation to other generation, generation to generation, generation to generation. So this is called mutation. This is called. So look, once again, mutation is a phenomenon which result in alteration of the DNA sequences. बोलो DNA sequence जो था वो alter हो गया. And consequently result, और उससे क्या हुआ, काय पे रिजल्ट आया, चेंज इज जीनोटाइप. उसका जीन तो चेंज हो गया, जीनोटाइप मींस जीन तो चेंज हो गया. एंड ऑल्सो फेनोटाइप, उसके स्किन कलर में भी कुछ डिफेक्ट आ गई ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, तो कोई अपने स्टूडेंट बोलेगा सर मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में भी तो हुआ था कि उसका जो था उसमें थोड़े बहुत चेंज आए थे. हाँ, वो कैरेक्टर चेंज काहे के लिए हुए थे? दैट इज ओनली ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. जो नॉर्मल क्रॉसिंग ओवर है उसके लिए हुआ था, ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ था. म्यूटेशन इज अनदर फिनोमिनन दैट लीड्स टू द वेरिएशन इन डीएनए. तो बोलो पूरा क्या हुआ, डीएनए में वेरिएशन आ गया, और डीएनए में वेरिएशन आ गया तो उसका पूरा कैरेक्टर, जीनोटाइप, फेनोटाइप सब चेंज हो गया. As you will learn in chapter number 6, the one DNA helix runs continuously from one end to other end each in chromatid. क्रोमोसोम जो ऐसा रहता हैगा, ये क्रोमोसोम रहता हैगा, सेंट्रोमियर से ऐसा जॉइंट होता हैगा, उसका एवरी ये पार्ट है उसको क्रोमेटिड कहते हैं. इन दिस क्रोमेटिड दिस इज द डीएनए, वन एंड टू अदर एंड. ने बोलो ये डीएनए है, इसके अंदर बोलो ये एक जीन है, यहाँ से सेकंड जीन है, यहाँ से थर्ड जीन है, ऐसे नंबर्स ऑफ जीन रहेंगे. इन हाईली सुपर कोइल्ड फॉर्म, वो इतना यहाँ पे कोइल्ड है, वो चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे कि वो कैसे अरेंज हुआ. Therefore, loss, deletion or gain, insertion or duplication of a segment of the DNA result in alteration in chromosome. अब देखते क्या ये बोलना चाहता हैगा. चलो once again अपना यही एग्जाम्पल है. बोलो क्या हैगा. Therefore, loss, deletion or gain of a segment of the DNA. बोलो ये अमेरिकन पर्सन का स्किन कलर का ये जीन था. अभी हम देखते हैं बोलो क्या हुआ. बोलो क्या है, फर्स्ट है क्या आपने बोला है, देयरफॉर डिलीशन, लॉस, पूरा ये लॉस हो गया, इतना पार्ट लॉस हो गया. तो बोलो सीक्वेंस क्या आना था, ATCGTA. उसके बदले सीक्वेंस क्या हो गया, ACGTA. तो बोलो क्या हुआ, इसके अंदर बोलो ऐसा लॉस होने से उसका पूरा फॉर्म, जेनेटिक फॉर्म कैसा हो गया, चेंज हो गया. जेनेटिक फॉर्म चेंज हो गया तो क्या होगा, उससे जो कैरेक्टर डेवलप होता है वो कैरेक्टर भी फॉल्टी बन जाएगा. और ऐसा नहीं कि वही पर्टिकुलर में फॉल्ट बनेगा, ये जो फॉल्ट डेवलप होगा इट विल बी कंटिन्यूसली फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. जनरेशन टू जनरेशन वो कंटिन्यूस रहेगा. बोलो जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यूस रहेगा तो क्या होगा, उसको म्यूटेशन बोलेंगे. और द गेन, इंसर्शन और डुप्लीकेशन ऑफ द सेगमेंट ऑफ डीएनए. बोलो यहां से जो सीक्वेंस थी बोलो क्या थी, ATCGTA. बाय चांस क्या हुआ, जैसे लॉस हो सकता है ऐसा दूसरा यहाँ पे कुछ ऐड भी हो सकता है. बोलो कैसे, ये एक वर्ड था एनोनो, इसके अंदर बोलो इंसर्शन हो गया. इंसर्शन हो गया तो बोलो क्या आपने बन गया, नाउ बन गया. बोलो इसको बोलो ये कोई चेंज हो के ऐसा आपने हो गया तो बोलो क्या बन गया, वन बन गया. बोलो यहाँ पे ऑन था, इसमें ऐड हो गया तो वन बन गया. वन था उसमें से बोलो क्या हो गया, ये डिलीट हो गया तो ऑन बन गया. मिस कहने का मतलब क्या आएगा, कुछ ऐड हो जाएगा तो भी चेंज हो जाएगा सीक्वेंस, डिलीट होएगा तो भी सीक्वेंस चेंज हो जाएगा. सो दिस एडिशन, डिलीशन और गेन of a segment of the DNA result in alternation in chromosome. और बोलो उसके बाद में क्या, result in alteration of the chromosome. Since genes are known to be located on chromosomes,
Alteration in chromosome result in abnormalities of aberration. Chromosomal aberrations are commonly observed in cancer cell. ये भी हम समझते हैं, ये अपने क्या है, क्रोमोसोम एब्रिएशन. बोलो, वी हैव द इन आवर न्यूक्लियस इन एवरी सेल हाउ मेनी क्रोमोसोम? 23 पेयर्स मीन्स 46. अब बोलो, वो कोई पर्टिकुलर में क्या हो गया, एक क्रोमोसोम ज्यादा का ऐड हो गया, तो इंस्टेड ऑफ 46 दैट टोटल क्रोमोसोम नंबर टर्न्स 47. एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं. बोलो, ये एग्जाम्पल से हम समझे तो बोलो, ओ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ए लेडी, दैट लेडी इज द फर्स्ट पेयर ऑफ द क्रोमोसोम, सेकंड थर्ड ऐसे हमने करते 22 पेयर परफेक्ट है. बोलो, वो लेडी में 23rd पेयर एक्स एक्स होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ वन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आ गया. बोलो, ड्यू टू दिस वन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम व्हाट विल बी हैपन? वो बोलो 23 पेयर में +1 मीन्स 47 क्रोमोसोम हो गए. वो 47 क्रोमोसोम हो गए तो ये लेडी के कैरेक्टर में बोलो एक एक्स्ट्रा एक से क्या होगा, उसके कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे. क्रोमोसोमल एब्रेशन आर ऑल्सो ऑब्जर्व इन कैंसर सेल. कैंसर सेल में भी होता हैगा, नॉर्मल सेल में भी हो सकता हैगा. In addition to the above, mutation is also arise due to the change in single base pair of the DNA. अभी तो मैंने समझा दिया इसको. बोलो, सिंगल बेस पेयर ये सब होता है तो बोलो ये सिंगल बेस पेयर एड हो गया, ये सिंगल बेस पेयर डिलीट हो गया. अगर जो सिंगल बेस पेयर में होगा तो दिस इज नोन एज द पॉइंट म्यूटेशन. जीन में पर्टिकुलरली एक ही जीन एक ही नाइट्रोजन बेस पे एक ही पॉइंट पे एडिशन हुआ, डिलीशन हुआ, that is called which kind of mutation? Point mutation. A classical example of such a mutation is sickle cell anemia. आगे हम स्टडी करेंगे जिसमें सिकल सेल एनीमिया चैप्टर नंबर 6 में आगा. That sickle cell anemia is the just change of the one nitrogen base. Due to change in one nitrogen base, what will be happen? What will be happen? तो ये सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन के लिए जो भी नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस है उसमें एक सीक्वेंस में चेंज हो गया, सिंगल सीक्वेंस चेंज हो गई तो बोलो क्या हुआ, वो जो नाइट्रोजन बेस चेंज होने से पूरा बॉडी का कैरेक्टर चेंज हो जाता है. A classical example of such a mutation is sickle cell anemia. Deletion and insertion of the base pairs of the DNA cause frame shift mutation. इससे हमने बोलो क्या होता है, एडिशन होएगा तो पूरा पूरा उसकी फ्रेम शिफ्ट होगी. कैसे फ्रेम शिफ्ट होती है? चैप्टर नंबर 6 में जब जेनेटिक कोड समझेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि 3-3 की पेयर रहती है, इसमें 3-3 सीक्वेंस आते हैं. तो एक एडिशन होएगा तो वो 3 का पूरा ऐसा शिफ्ट चेंज हो जाएगा. वो चैप्टर नंबर 6 में हम स्टडी करेंगे. The mechanism of the mutation is beyond the scope of the discussion. अभी यहाँ पे हमको ये नहीं समझना है कि फ्रेम शिफ्ट हुआ, पॉइंट हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब नहीं समझना है. At this level, however, there are many chemical and physical factors that induce the mutation. Chemical factor भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू द पर्टिकुलर केमिकल क्या होएगा, वो केमिकल से ये डीएनए भी एक केमिकल, ये बेस तो नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट एंड शुगर, तो ये केमिकल पे केमिकल रिएक्शन होने से इसके अंदर चेंज हो गया. फिजिकल, ड्यू टू द अल्ट्रावायलेट रेज, Nagasaki, Hiroshima, due to that nuclear bombarding, what happened, whatever rays emerged, that rays has affected numbers of persons. तो वो जो पर्सन थे उसका तो ये चेंज हो गया, बट उसमें से गैमेट से उनके जनरेशन में आ रहा है तो वो भी आप कैसा आएगा, म्यूटेंट होंगे. That induce mutation, these are referred एज म्यूटेशंस. जो रीजन से म्यूटेशन हुआ हैगा वो केमिकल हो सकता है, फिजिकल, उसको बोलेंगे म्यूटेशंस. ने जो आया उसको बोलेंगे म्यूटेशन, ने जिस जो हुआ उसको बोलेंगे म्यूटेंट. यूवी रेडिएशन कैन कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, इट इज अ म्यूटेजन. बोलो वो क्या आएगा, जिससे होता है उसको क्या बोलेंगे, म्यूटेजन. जेनेटिक डिसऑर्डर, अब ये जो समझना है तो वो समझने के लिए ये पूरा कहां से कहां जाएगा, जनरेशन से जनरेशन. डिसऑर्डर, म्यूटेशन, सो दिस इज कॉल्ड एज द वर्ड जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर.
नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग, ऑर्डर बरोबर नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर। पेडिग्री एनालिसिस, the idea that the disorders are inherited has been privileged in the human society since long, बहुत पहले से पता है कि ह्यूमन में ऐसा 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 हो सकता है। This was based on the heritability of the certain characteristics features in families। वो हम कितनी फैमिली देखते कि भाई वो फैमिली में तो सभी को डायबिटीज है, उनके पेरेंट्स में भी था, उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी है, तो ये क्या है, जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिटेबिलिटी। आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडल्स वर्क, द practice of the analyzing inheritance pattern of the traits in human being is began। मेंडल का जो वर्क था, ड्यू टू द मेंडल वर्क, ह्यूमन के अंदर भी ये डिसऑर्डर ये जो है वो ह्यूमन बीइंग में भी उसका स्टडी चालू हुआ। Since it is evident that the control cross that can be performed in pea plant or some other organisms are not possible in case of human being। बोलो क्या होता, पी प्लांट में कैसा लिया, एक टोल प्लांट लिया और हमने आर्टिफिशियल उसका किसके साथ में क्रॉस करा, ड्वार्फ के साथ में करा। क्या ह्यूमन बीइंग में ऐसा है कि डायबिटिक फीमेल के साथ नहीं करेगा वो। अरे कोई अमेरिकन गोरा गोरा है, फेयर है, वो अफ्रीकन ब्लैक लेडीज के साथ में मैरिज करेगा, नहीं करेगा। ह्यूमन इंडियन है, इंडियन लेडी को बोलेंगे कि ऐसे अफ्रीकन के साथ में तो मैरिज कर, वो अपने करेगी, नहीं करेगी। अरे इवन इन आवर सोसाइटी तो हमने देखा है कि ये एक कास्ट है, वो दूसरी कास्ट है, वो है, वो ही नहीं हो सकता हैगा, तो इतना सब तो कहां से हो सकता हैगा। सो इन ह्यूमन बीइंग, to understand this particular phenomenon of the heredity, we cannot have the control crossed। अगर जो कंट्रोल क्रॉस नहीं आता है तो हमको पता कैसे चलेगा, तो वो पता करने के लिए जो मेथड है उसको हमने बोलेंगे पेडिग्री एनालिसिस। क्या बोलेंगे उसको, पेडिग्री एनालिसिस। The idea that disorders are inherited has been prevailing in the human society since long। This was based on the heritability of certain characteristics, features in family। After the rediscovery of the Mendel's work, the practice of the analyzing the inheritance pattern of traits in human being began। वो जो इनहेरिटेड ट्रेस जो भी कैरेक्टर है उसका स्टडी स्टार्ट हुआ। Since it is evident that the control cross that can be performed in pea plant or the some other organisms are not possible in case of human being। Study of the family history about the inheritance of the particular trait provides an alternative। तो अब वो नहीं होता तो हम क्या करेंगे, हमको कोई ऐसा फैमिली मिला तो वो फैमिली में किसी को अंदर ऐसा कोई कैरेक्टर है तो हम उसको पूछेंगे तेरे मदर फादर में किसको था, फिर वो अपने बताएगा कि मेरी मदर को था, तो हम उसको नहीं पूछेंगे तेरी मदर के मदर फादर में से किसको था, फिर वो अपने बताएगा कि मेरे मदर के फादर को था, तो हम उसको पूछेंगे कि तेरे उनके ने मदर फादर में से किसको था। तो देखो ये पर्टिकुलर पर्सन में उसके प्रीवियस जो भी पैटर्न है, मैटरनल पैटर्नल जो भी उसका सीक्वेंस है उस पे से हमको ने पता चलता हैगा कि उसमें से कैसे इनहेरिटेंस हुआ। Particular provides an alternative। Such an analysis of the trace in a several generation of a family is called pedigree analysis। In the pedigree analysis, the inheritance of the particular trace is represented in the family tree over the generation and generation। पूरा ऐसा बनेगा जनरेशन टू जनरेशन, उसको ने बोलेंगे पेडिग्री ट्री। देखो ये यहाँ पे दो पेडिग्री ट्री ड्रॉ करके दिएंगे, ये एक है, उसके पहले के ऐसा आएगा, उसके पहले का ऐसा आएगा, उसके पहले का ऐसा आएगा, मीन्स जो भी कुछ हैंगे वो पूरा ऐसा ड्रॉ करेंगे, उसको ने बोलेंगे पेडिग्री एनालिसिस और पेडिग्री ट्री। इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग टूल। ह्यूमन के लिए एक ही है, कौन सा आएगा,
pedigree analysis, which is utilized to trace the inheritance of specific trait, abnormalities or the disease. Some of the important standard symbols used for this pedigree analysis have been shown in figure number 5.3 sorry 5.13. 5.30 पे बोलो ये पेडिग्री एनालिसिस का जो दिया है उसमें देखो ये तुमको आना चाहिए। बोलो नॉर्मल मैन है, नॉर्मल मेल को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, नॉर्मल फीमेल को, ये नॉर्मल मेल, ये नॉर्मल फीमेल को राउंड से रिप्रेजेंट करेंगे, बट सेक्स अनस्पेसिफाइड होगा तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सम स्टूडेंट मेरे को पूछते कि सर सेक्स अनस्पेसिफाइड मींस व्हाट? बोलो कोई के अंदर ऐसा कोई फॉल्ट आया तो बोलो ये लेडी है, ये गर्ल के अंदर है तो उसके प्रीवियस उसको ने पूछेंगे तेरे मदर में था कि तेरे फादर, तो देखो मदर को ऐसा, फादर को सॉरी मदर को ऐसा, फादर को ऐसा, तो बोलो क्या हुआ यहाँ से इसको ऐसा हमने बताएंगे। अभी हम समझते हैं सेक्स अनस्पेसिफाइड हम समझे। अब हम पूछेंगे कि चलो तेरे फादर को था तो तेरे फादर में से उनके मदर फादरों के साथ था मीन्स दादा दादी को, तो वो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं परंतु आई थिंक दादा को था कि दादी को था, कुछ कंफर्म नहीं है। अगर जो वो कंफर्म नहीं है ऐसा जब हम बोलेंगे तो उसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, सेक्स अनस्पेसिफाइड। चलो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, बोलो अफेक्टेड बताना है तो बोलो ये नॉर्मल मेल था, तो बोलो अफेक्टेड बताना है तो क्या करने का, पूरा अंदर से ये पूरा उसका जो सिंबल है उसको डार्क कर देने का। फीमेल को अफेक्टेड बनाना है तो उसको ऐसा डार्क कर देने का। अनस्पेसिफाइड सेक्स अफेक्टेड है तो उसको ऐसा डार्क बता देने का। तो बोलो यहाँ से हमने जो पेडिग्री टी के लिए बोला ये जो है ये अफेक्टेड डॉटर है तो उसको पूरा डार्क कर देंगे। उसके फादर अफेक्टेड थे तो उसको ऐसा डार्क कर देंगे। उसके फादर में से मदर फादर किसको अफेक्टेड था पता नहीं, अनस्पेसिफाइड, तो अनस्पेसिफाइड को डार्क कर देंगे। अगर जो हम डार्क नहीं करते ब्लैंक रखते तो नॉर्मल है, उसको डार्क कलर कर देते तो अफेक्टेड है। उसके बाद में मैटिंग, मैटिंग मीन्स मेरे देखो ये फादर एंड मदर को हमने ये अपने मैटिंग में बताया। मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, कॉन्सेक्यूनियस मैटिंग, बोलो रिलेटिव्स में मैरिज हुएंगे तो उसको ना डबल में करेंगे, रिलेटिव्स में मैरिज नहीं हुए तो उसको सिंगल बताएंगे। बोलो इसका मतलब क्या हुआ, ये लेडी और ये अफेक्टेड मेल के बीच में मैरिज हुआ बट वो पहले कोई रिलेशन में नहीं थे। बट अगर जो मैं ऐसा आपने कर देता हूं तो बोलो क्या होएगा, ये लेडी और ये अफेक्टेड मेल के बीच में मैरिज हुआ बट वो क्रॉस रिलेशन में थे, उनके रिलेटिव्स में से ही दोनों थे, उसमें से मैरिज हुआ आएगा। पेरेंट्स अबव एंड द चिल्ड्रन बिलो, पेरेंट्स अबव चिल्ड्रन बिलो, तो चिल्ड्रन को ये ऐसा बताएंगे। लेफ्ट से राइट, फर्स्ट चिल्ड्रन गर्ल है अफेक्टेड ऐसा, चलो दूसरा चिल्ड्रन कैसा आएगा, मेल है नॉर्मल है ऐसा, तीसरा चिल्ड्रन भी कौन हैगा, तीसरा चाइल्ड भी कौन हैगा, तो तीसरा चाइल्ड भी बॉय है बट अफेक्टेड है तो ऐसा। चलो उसके ने बाद का चाइल्ड वापिस बोलो क्या है, गर्ल है नॉन अफेक्टेड तो ऐसा। तो बोलो ये बोलो क्या आपने बना, नॉर्मल गर्ल का मैरिज किसके साथ हुआ, अफेक्टेड मेल के साथ में हुआ। उसके बोलो बच्चे में क्या हुआ, फर्स्ट डॉटर है अफेक्टेड है, सेकंड सन है नॉर्मल है, थर्ड डॉटर सन है अफेक्टेड है, फोर्थ वन है बोलो क्या आएगा, डॉटर अनअफेक्टेड है। चलो इससे आगे हम समझेंगे तो बोलो क्या आएगा। अब इसके नॉर्मल के मेरे नॉर्मल के साथ में हुए तो साइड पे लिख देंगे, इसके ऊपर ऐसा नहीं करेंगे, क्यों कि ये दोनों का ये चाइल्ड नहीं है, इसके मैरिज है इसके साथ, इसके ने बाजू में ड्रॉ करेंगे। इसका ने मैरिज है बोलो, इसका ने मैरिज बोलो या कोई के साथ है तो ये सब ने करेंगे। समझ में आना चाहिए, यहाँ से जो एरो ऐसे जाएंगे वो उसके चाइल्ड में ही जाएंगे, उसके मैरिज जिसके साथ में होंगे उसको अलग से बताएंगे। चलो अब इसके जो है तो इसके ने जो भी चिल्ड्रन होंगे वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इसके भी जो चिल्ड्रन होंगे वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। चलो इसके चिल्ड्रन में बोलो ये अफेक्टेड गर्ल है, उसके ने मैरिज कोई के साथ हुए तो ऐसे अपने करेंगे। कितने ने स्टूडेंट क्या करते उसके ऊपर भी ऐसा कर देते, इट्स नॉट पॉसिबल। तो देखो ये जो सब सिंबल है, फ्रॉम दिस सिंबल वी कैन स्टडी दिस, तो बोलो यहाँ पे ये सिंबल है, ये सब सिंबल तुमको आने चाहिए।
चलो अब, एज यू हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर ईच एंड एवरी फीचर इन एनी ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय द वन और अदर जीन लोकेटेड ऑन द डीएनए प्रेजेंट। मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा था, बोलो कोई भी ट्रेट, कोई भी कैरेक्टर किससे कंट्रोल रहता हैगा, तो डेट कैरेक्टर that is controlled by the डीएनए। वो डीएनए के अंदर भी बोलो किससे, उसके अंदर जो उसका जीन है उससे कंट्रोल रहता हैगा, which is present in the chromosomes। डीएनए is the carrier genetic information। why, बोलो गैमीट फॉर्मेशन होगा तो यही क्रोमोसोम उसके गैमीट में आएगा, मीन्स ये पूरा क्रोमोसोम आया, व्हाट डस मीन, ये पूरा डीएनए आया, तो बोलो कैरेक्टर एक जनरेशन में से कहां गया, दूसरे जनरेशन में गया। इट इज हेंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर विदाउट एनी चेंज और ऑल्टरेशन। However, changes or alteration do take place occasionally. Such an alteration or the change in the genetic material is referred to as a mutation। हाईलाइट करो म्यूटेशन की डेफिनेशन, कहां से, ये पेज पे ऊपर, बोलो कहां से, ये पेज के ऊपर नहीं, सामने के पेज पे से, सामने के पेज पे बोलो लास्ट लाइन क्या, each and every feature in any organism is controlled by one or other gene located on the DNA present in the chromosome। DNA is the carrier of the genetic information. It is hence transmitted from one generation to the other generation without any change or alteration। However, changes or alteration do take place occasionally. Such an alteration or changes in the genetic material is referred to the म्यूटेशन। ये म्यूटेशन की पूरी एक्सप्लेनेशन हुई। A number of disorders in human beings have been found to be associated with inherited of change or relate or altered genes और क्रोमोसोम। नंबर ऑफ ऐसे एग्जाम्पल है जो इसमें हमको पता चलते हैंगे, हम स्टडी करते हैंगे। अब उसमें से भी हमको दो टाइप स्टडी करना हैगा, एक को बोलेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर, और दूसरा बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। आज हम मेंडेलियन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, बोलो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम कितने होते, 23 पेयर्स। 23 pairs means how many, 46। इंस्टेड ऑफ 46 इट टर्न्स टू 47 और 45। ऐसा सब होने से जो आएगा उसको बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम देखेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर है, तो यही बोलो डीएनए में जो जेनेटिक कोड है TCGCT जो है उसमें एक एडिशन हो जाना, एक डिलीट हो जाना, कि ऐसा जो भी कुछ है, या तो बोलो टी था तो टी के बदले यहाँ पे होना चाहिए था ATCGCT, उसके बदले यहाँ पे चेंज होके जी आया तो भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसा सब जो होता है उसको ने क्या बोलेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर। Broadly, genetic disorder may be grouped into two categories: Mendelian disorder and chromosomal disorder. Mendelian disorders are mainly determined by the alternation or the mutants in single gene। पूरे क्रोमोसोम में चेंज नहीं होता हैगा, क्रोमोसोम नंबर्स रिमेन एज इट इज 46। वो 46 में भी पूरे के पूरे क्रोमोसोम के अंदर नहीं, कोई एक या दो जीन के अंदर ही थोड़ा चेंज होता है। वो चेंज भी कैसा, कुछ ऐड हो गया एडिशन, कुछ डिलीट हो गया, या तो कुछ ऐसा कुछ थोड़ा चेंज हो गया। These disorders are transmitted to the offspring of the same line as we studied in the प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। वो लाइन में, सेम लाइन यानी जिसमें आया वो जनरेशन में से उसकी नेक्स्ट जनरेशन में, उसमें से उसकी नेक्स्ट जनरेशन में, वही कंटिन्यू रहेगा, दूसरे के अंदर जाएगा नहीं। The pattern of the inheritance of such Mendelian disorders can be traced in a family बाय द पेडिग्री एनालिसिस। पता कैसे चलेगा, जिसके अंदर ऐसा आया है उसकी फैमिली का पेडिग्री एनालिसिस करो।
मोस्ट कॉमन एंड प्रीवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर हीमोफीलिया। हाईलाइट करो, आगे हम स्टडी करेंगे जब देख लेंगे कि ये क्या है। अभी तो तुमको इसका एग्जांपल आने चाहिए। व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल गिवन हियर? हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसेमिया। यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। These are the Mendelian disorder. एग्जाम में तुमको नीट में आ सकता है। फाइंड आउट फ्रॉम दिस व्हाट आर द मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड वो व्हाट आर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो हमको उसमें से अगर जो पता होगा ये सब ऑर्डर डिसऑर्डर कितने आ जाते, सर थैलेसीमिया में क्या होगा, सर इसमें ने क्या होगा, वो अभी हमको स्टडी नहीं करना है, वो आगे आएगा जब हम देख लेंगे। By pedigree analysis, one can easily understand. It is important to mention here that such Mendelian disorder may be dominant or recessive. बोलो क्या हुआ, कोई के अंदर बोलो ये फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम था, फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम में क्या हुआ, यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हुआ, मैं इसको डार्क करके करता हूँ, मिस ये म्यूटेशन हुआ। बट बोलो ये अपने म्यूटेंट कैसा बना, म्यूटेंट जीन कैसा बना, रिसेसिव बना। रिसेसिव बना तो बोलो इसके अंदर म्यूटेशन हुआ बट उसमें अफेक्शन डिसऑर्डर नहीं आएगा। उसके नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, यहाँ से आया, इसको ये फर्स्ट क्रोमोसोम यहाँ से मिला, लेकिन इसके ने मैरिज जिसके साथ है वहां से वो सन डॉटर को भी दूसरा मिला, यहाँ भी वो रिसेसिव है, तो बोलो इसके अंदर भी वो म्यूटेंट जीन तो आया बट अफेक्शन नहीं आया, अफेक्टेड नहीं है। बोलो यहाँ से क्या हुआ, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में बोलो ऐसा म्यूटेंट आया, ने बोलो इसके जिसके साथ मैरिज हुई तो उसमें से भी म्यूटेंट आया तो उसमें आएगा। तो बोलो अगर जो वो कैसा है, रिसेसिव है तो उसके अंदर नहीं वो आता है वो डिसऑर्डर, बट इट ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड मे पॉसिबल के इन एनी जनरेशन आफ्टर 6, 7, 8, 9 जनरेशन में पॉसिबल कि वहां पे वो फेनोटाइप बन के बाहर आएगा। तो ऐसा जो होता हैगा वो रिसेसिव में। बट यही चीज समझ लो, बोलो पेड़ में है बट बोलो ये डोमिनेंट है, ये नॉर्मल रिसेसिव रहा, नॉर्मल था वो रिसेसिव बन गया, बट जो म्यूटेंट है वो ज्यादा इफेक्टिव बन के डोमिनेंट बन गया, तो बोलो क्या रहेगा, इसमें भी प्रॉब्लम आएगा। इसमें से बोलो इसको यहाँ पे गया, इसके मैरिज जिसके साथ थे वहां से इसको नहीं मिला, यहाँ से अपने मिला तो बोलो वो नॉर्मल मिला बट वो नॉर्मल कैसा है, रिसेसिव बन रहेगा, तो इसमें भी प्रॉब्लम आएगा। वो रिसेसिव भी हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है। रिसेसिव होगा तो क्या रहेगा, रिसेसिव होगा तो बोलो उसके अंदर पर्टिकुलर नहीं बट उसके नेक्स्ट जनरेशन में आने की पॉसिबिलिटी है। Such Mendelian disorder may be dominant or recessive. By pedigree analysis, one can easily understand whether the trait is in questions is dominant or recessive. इसके लिए पेडिग्री एनालिसिस स्टडी करना पड़ेगा। अलग अलग एग्जाम्पल लेके हम नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टडी करेंगे। Similarly, the trait may also be linked to the sex chromosome at in case of hemophilia. ऐसा भी नहीं कि वो ऐसे फर्स्ट क्रोमोसोम ने वो है, बोलो इसमें क्या हो सकता है, कोई लेडी है वो लेडी के एक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आया, बोलो ये अपने लेडी के एक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आया हुआ है, वो अपने म्यूटेंट है ने उसके ने मैरिज जो मेन के साथ में हुएंगे उसके अंदर ऐसा नॉर्मल हैगा, तो लो क्या होगा, फर्स्ट पेड सेकंड पेड अप टू 22nd पेड तो नॉर्मल है, मींस उसमें कोई इफेक्ट नहीं, इसमें भी नहीं, तो बोलो यहाँ से क्या हुआ, ये रिसेसिव है तो बोलो यहाँ से ये अपने जाएगा, तो उसके अंदर बोलो क्या हुआ, ये यहाँ से ये आया, तो बोलो ये चाइल्ड उसका कौन सा है, गर्ल चाइल्ड है, क्योंकि हम 23rd पेयर को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये गर्ल चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड में कौन सा था, रिसेसिव था, तो बोलो क्या हुआ, ये जो लेडी थी उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आया, उसकी जो ये गर्ल चाइल्ड है उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आया, बोलो यहाँ से क्या हुआ, इसको दूसरी चाइल्ड भी गर्ल है, बोलो वो भी नॉर्मल है, बट बोलो तुम समझ सकते हो यहाँ से उसके आगे के जनरेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट इसके आगे के जनरेशन में पॉसिबल आ सकता है। चलो यहाँ से हम समझ देंगे, बोलो इसका बॉय चाइल्ड है, बॉय को ये आया, बोलो यहाँ पे आया तो बोलो क्या है, एक ही एक्स है, सिंगल एक्स ने वो भी रिसेसिव आ गया, तो ये बॉय चाइल्ड को प्रॉब्लम हो सकता है, मेल चाइल्ड को प्रॉब्लम हो सकता है।
यानी ऐसा पूरा हम चार्ट ड्रॉ करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कहां से कहां पर आया है। इसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। सिमिलरली ट्रेट में ऑल्सो बी लिंक टू द सेक्स क्रोमोसोम इन केस ऑफ हीमोफीलिया। आगे सब एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे तो ख्याल आएगा। It is evident that X-linked recessive traits show transmission from carrier female to the male progeny। बोलो इसको इन्हें क्या बोलेंगे? X में रिसेसिव है तो ये फीमेल को बोलेंगे कैरियर। क्यों कैरियर? वो कैरी करती है, खुद के अंदर वो कैरिंग करती है, बट उसके अंदर नहीं है। उसमें से उसकी गर्ल को मिला तो ये भी उसके अंदर नहीं है, बट उसके अंदर वो रिसेसिव है तो ये भी कैरियर है, ये नॉर्मल है। बट बोलो ये कैरियर में से क्या हुआ? इसके ये सॉरी उसके ये बॉय चाइल्ड को मेल चाइल्ड को मिलाएगा। तो बोलो रिसेसिव गर्ल होगी, रिसेसिव गर्ल होगी तो वो किसको, वो कैरियर बन के किसको ट्रांसफर करेगी? बॉय को, बट गर्ल को नहीं करेगी। गर्ल में कैरियर ही बनेगी। ये कैसे है? आगे दूसरे हम रिसेसिव चार्ट करेंगे, रिसेसिव ने उसके दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हमको ऐसे ही सब स्टडी करना है। A representative pedigree shown in the figure 5.15 for dominant and recessive traits. डिस्कस दिस विज योर द टीचर, वो तो हम डिस्कस कर ही रहेंगे। तो देखो खाली अभी जो हमारे बुक में दिया है उसको अभी हम ये खाली समझ लेतेंगे, उसका डिटेल तो तुमको नेक्स्ट में जब मैं अलग अलग चार्ट कराऊंगा तो ख्याल आएगा। फर्स्ट में देखो ये जो गर्ल है, बोलो वो गर्ल कैसी है? अफेक्टेड है। उसके ने मैरिज किसके साथ में हुए? नॉर्मल मेल के साथ में हुए। चलो अब उसकी ने बोलो जनरेशन कैसी हैगी? तो फर्स्ट चाइल्ड है वो नॉर्मल गर्ल है, सेकंड चाइल्ड है वो अफेक्टेड बॉय है। चलो थर्ड चाइल्ड कौन है? नॉर्मल बॉय है। फोर्थ चाइल्ड कौन है? अफेक्टेड गर्ल है। अब देखो इसमें क्या हुआ, नॉर्मल बॉय के मैरिज नॉर्मल गर्ल के साथ में हुए और वहां से अपने उसकी फिर से बोलो जनरेशन है, उसमें फर्स्ट चाइल्ड गर्ल है, सेकंड चाइल्ड भी नॉर्मल गर्ल है, थर्ड चाइल्ड भी बोलो क्या है? नॉर्मल बॉय है। बट बोलो यहाँ पे क्या हुआ, ये अफेक्टेड के बोले मैरिज किसके साथ में हुए? नॉर्मल बॉय के साथ में हुए। बट उसकी अपने जनरेशन में देखो नेक्स्ट जनरेशन में क्या है? नॉर्मल बॉय है, अफेक्टेड गर्ल है एंड नॉर्मल बॉय है। ये कौन सा दिया है? दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल यानी सेक्स लिंक क्रोमोसोम नहीं है, फर्स्ट पेयर टू 22nd पेयर में है क्या? और डोमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। फॉर एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। चलो दूसरा है ऑटोसोमल रिसेसिव, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में जो रहता है उसमें क्या रहता है? हीमोग्लोबिन में फॉल्ट आता है। तो बोलो क्या हुआ यहाँ पे? बोलो ये दोनों मेल एंड फीमेल कैसे नॉर्मल है? वो नॉर्मल है, बट बोलो उसके चाइल्ड में बोलो क्या हुआ? फर्स्ट मेल चाइल्ड है वो नॉर्मल है, सेकंड मेल चाइल्ड है वो बोलो कैसा है? अफेक्टेड है। तो क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ तो दोनों में से कोई अफेक्टेड नहीं है, फिर ये क्यों आया? आंसर इज वेरी इजी कि ये दोनों अफेक्टेड नहीं है, हमको लग रहा है अफेक्टेड नहीं है, बट उनके कोई पेयर क्रोमोसोम में एक पे कौन सा था? रिसेसिव था। वो रिसेसिव क्रोमोसोम जीन था, वो रिसेसिव था। तो बोलो इसके अंदर रिसेसिव प्रेजेंट होने से सामे डोमिनेंट होने से उसमें कैरेक्टर नहीं आया, बट वो ट्रेड, वो फॉल्टी ट्रेड उसके नेक्स्ट जनरेशन में आया। जैसे कि बोलो ये बना, इसको हम क्या ले सकते हैं? रिसेसिव, ये यहाँ पे लेते हैं ऐसा। तो बोलो इसको एक से लिखने बदले ऐसा मैं लिख दूं तो बोलो क्या होगा? इसकी प्रेजेंस से इसमें इफेक्ट नहीं आई, बट जब ये इसको मिला, नेक्स्ट जनरेशन को मिला गैमेट से, तो उसके अंदर इफेक्ट आए। चलो ऐसे ही बोलो थर्ड नॉर्मल गर्ल है, फोर्थ अफेक्टेड गर्ल है, फिफ्थ वन नॉर्मल बॉय है। अब बोलो ये जो नॉर्मल गए उसका ने मेरे नॉर्मल मेल के साथ में हुआ, तो बोलो यहां से आया तो बोलो फर्स्ट मेल बॉय कैसा आएगा? वो कैसा है? अफेक्टेड है। सेकंड गर्ल चाइल्ड, थर्ड गर्ल चाइल्ड भी नॉन अफेक्टेड है। तो बोलो क्या हुआ? यहां से हम सोचेंगे तो बोलो यहाँ पे आया आएगा, यहाँ पे क्या आया है? नॉर्मल ये स्मॉल टी आया, बट उसको यहाँ से कैपिटल टी मिला होगा, तो ये कैरियर बना। इसके अंदर डोमिनेंट होने से इसमें कैरेक्टर नहीं आया, बट जब ये इसके साथ मैरिज हुआ तो यहाँ से इसको स्मॉल टी मिला, और यहाँ से भी पॉसिबल स्मॉल टी मिला क्योंकि वो भी ऐसा ही था,
रिसेसिव उसमें भी था, तो ये फॉल्टी आया। ये पूरा कैसे एनालिसिस करना वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और A representative pedigree is shown in the figure 5.15 for dominant and recessive traits. Discuss with your children, these children how they goes on date with your teacher. तो हमने ये अपने स्टडी कराएगा। अब ये कैसे आता है, जनरेशन टू जनरेशन कौन है, हम 4-5 चार्ट अलग लेके हमें नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो में समझाऊंगा, तो तुमको समझ में आएगा।